Students, hope you are doing well. Today we will start a new topic, nitrogen cycle. Before going into brief of nitrogen cycle, we should know the composition of air and importance of nitrogen in life. Air is a mixture of several gases. It contains about 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.93% inert gases, 0.03% carbon dioxide, and 0.04% other gases. Now importance of nitrogen for living beings. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा. Nitrogen is a part of many molecules essential to life like proteins, nucleic acids and some vitamins. नाइट्रोजन लाइफ के लिए जरूरी कई मॉलिक्यूल्स का एक हिस्सा है जैसे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कुछ विटामिन्स. Nitrogen is found in other biologically important compounds such as alkaloids and urea too. नाइट्रोजन दूसरे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में भी पाए जाते हैं जैसे alkaloids and urea. Nitrogen is thus an essential nutrient for all life forms and life would be simple if all these life forms would use the atmospheric nitrogen directly. इस प्रकार नाइट्रोजन सभी लाइफ फॉर्म के लिए एक आवश्यक न्यूट्रिएंट है. यदि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिविंग बींग्स डायरेक्ट यूज करें तो लाइफ और आसान हो जाएगा. However, other than a few forms of bacteria, life forms are not able to convert the comparatively inert nitrogen molecules into forms like nitrates and nitrates, which can be taken up and used to make the required molecules. कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी लिविंग बींग्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं. नाउ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म बाय टू मैनर्स. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो यूजेबल फॉर्म में दो तरीके से बदला जाता है. फर्स्ट है बायोलॉजिकल फिक्सेशन और सेकंड है नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन. So let us start biological fixation. There are two main types of nitrogen fixing bacteria. Those that live free in the soil and those that live enclosed in the root nodules of the leguminous plants in a special structure called root nodules. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के दो मुख्य प्रकार हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं और यह लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में पाया जाता है और जिस स्पेशल स्ट्रक्चर में पाया जाता है उसे रूट नोड्यूल्स कहा जाता है. सेकंड, non-biological fixation. During lightning, the high temperature and pressure created in the air convert nitrogen into oxides of nitrogen. These oxides dissolve in water to give nitric and nitrous acids and fall on land along with rain. लाइटनिंग के समय हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से एयर का नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऑक्साइड्स फिर वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड कन्वर्ट होकर सॉइल में चला जाता है. अब यहाँ कुछ रिएक्शंस है उसको देखते हैं. नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म प्लस ऑक्सीजन इन गैसियस फॉर्म इट गिव्स नाइट्रस ऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म. सेकेंड रिएक्शन, नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म प्लस ऑक्सीजन इन गैसियस फॉर्म इट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन लिक्विड फॉर्म. नाउ दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड mix with water and it gives nitrous oxide and nitric acid. Look at this. Nitrogen dioxide plus water. It gives nitrous oxide and nitric acid. These oxides readily form nitrates which can be utilized by plants. और ये oxide जो है वो आसानी से nitrates बना देता है जिसको plants utilize कर लेता है. Now nitrogen cycle. There are four steps in nitrogen cycle. Step 1, nitrogen fixation. The process is converting atmospheric nitrogen into nitrates, which are soluble in water. This is done by various nitrogen fixing bacteria, example Rhizobium, blue-green algae and Bacterium Azotobacter. इस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है जिसको प्लांट आसानी से ले लेता है. और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो कुछ बैक्टीरिया हैं जिसका नाम है राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरियम एजोटोबैक्टर. इस 4 लाइंस को बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग लर्न करने के लिए. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स. नाउ स्टेप 2, एमोनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन.
It is the process of decomposing complex dead organic matter into ammonia. This is done by microorganisms living in the soil. Example, putrefying bacteria and fungi. इस प्रोसेस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और इसको कौन कन्वर्ट करता है? तो पिट्रीफाइंग बैक्टीरिया और फंगी। सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऐसे, कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। नाउ स्टेप 3, nitrification. It is the process of conversion of ammonia into nitrites and then into nitrates. This is done by nitrification bacteria, example Nitrosomonas and Nitrobacter. इस प्रोसेस में क्या होता है? अमोनिया पहले नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है और फिर नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स and again nitrites converted into nitrates. Now step 4, denitrification. It is the process of reducing nitrates present in the soil to release nitrogen gas back into the atmosphere through Pseudomonas bacteria. इसमें क्या होता है कि नाइट्रेट्स जो सॉइल में है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और इसको कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम है Pseudomonas बैक्टीरिया। नाइट्रोजन साइकिल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आता है या 3 मार्क्स में आता है। यदि 2 मार्क्स में आएगा तो आपको ये साइकिल बनाना पड़ेगा, साथ में इसकी लेवलिंग करनी पड़ेगी। यदि 3 मार्क्स में आता है तो ये साइकिल लेवलिंग प्लस स्टेप्स को लिखना होता है। अब इस साइकिल को मैं समझा देती हूँ, लर्न करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू वो प्लांट्स में आ जाता है, प्लांट्स से फिर एनिमल्स में आ जाता है, क्योंकि एनिमल्स या तो प्लांट्स को खाता है या प्लांट्स के पार्ट्स को खाता है। अब एनिमल्स में जब नाइट्रोजन आ गया तो वो नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है। यहाँ से यहाँ आने का 2 रास्ता है, या तो एक्सक्रीटा के थ्रू आ जाता है सॉइल में और सॉइल में रहने वाला बैक्टीरिया उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है, या फिर जब एनिमल्स मर जाता है तो वो सॉइल में आता है और सॉइल में रहने वाला बैक्टीरिया जो है वो इसको डिकम्पोज करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अब ये अमोनिया एक और रास्ते से बनता है, वो कैसे कि यहाँ ग्रीन प्लांट्स में जो नाइट्रोजन आया वो अमोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया के बाद नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन, और फिर नाइट्राइट्स के बाद नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, और नाइट्रेट्स के बाद फिर 2 रास्ता आता है, या तो डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू ओरिजिनल नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है जो एटमॉस्फेयर में पहले था, अदरवाइज ये नाइट्रेट्स फिर प्लांट्स के थ्रू कंज्यूम कर लिया जाता है और ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब आउटर मोस्ट साइड में देखिए एक सर्किल है, उसको समझाती हूँ। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो नाइट्रिफिकेशन के थ्रू इंडस्ट्रियल फिक्सेशन एंड एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन को क्रॉस करते हुए नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है और फिर डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ कंक्लूजन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल विद डायग्राम। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू प्लांट्स में आ गया बाया रूट। ओके, फिर इसको एनिमल खा लिया। एनिमल जब प्लांट्स को खा जाता है तो या तो एक्सक्रीटा के थ्रू या फिर जब ये मरता है तो वो डिकम्पोजर के थ्रू डिकम्पोज हो जाता है और अमोनियम में बदल जाता है। अमोनियम फिर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्राइट्स जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रेट्स में इसको कन्वर्ट कर देता है और फिर नाइट्रेट्स या तो प्लांट में चला जाता है, अदरवाइज डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। एक और प्रोसेस है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है सीधा इधर से आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू, साथ में अमोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू अमोनियम में कन्वर्ट हो गया और फिर आगे वाला जो है सर्किल वो सेम टू सेम चला जाएगा। ओके, दैट्स इट।